Now you will see grammar, non-finites to infinitives. Look at the following sentence. Studies the underlined word. Infinitive sentence है वो हमें देखना है. टेम्बू wondered if his father was ready to leave the hunt. टेम्बू क्या सोच रहे थे कि क्या उनके पापा जो है वो कुटिया से जाने के लिए चले गए, कुटिया में से चले. At the night it was a duty to see the lamp was burning. तो वो रात थी कि और ड्यूटी थी कि जो देखना था उनको कि जो लैम्प है वो चल रही थी अभी तक. The underlined words are infinitive. They are formed by writing to plus verb. Example: he had also to sleep at home. To sleep at home, to help. It's times to light the lamp. To light. So that is to plus help, to plus light. Note 2 is followed by the first form of the verb, that is the original form of verb without anything. टू जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में फॉलो करता है और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब में भी फॉलो करता है, कोई भी चेंजेस किए बिना. अंडरलाइन द इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो he agreed to postpone. It is dangerous to play the meeting with a gun. We tried to open the door but it had jammed. We have to learn more about infinitives. Bank is to deposit. Children go to play in a park. I forgot dash your letter. I forgot to post your letter. To post your letter. I want to dash to the stations. I want to go to the stations. She pretended to sleep. Infinitives words यूज करना है हमें. Would you like to join? Would you like to help us? Would you like to accompany? क्या तुम हमें accompany यानी company. He asked her dash the progress of the project. He asked to report the progress of the project. If is it safe dash the car here? To park here. कार को यहाँ पार्क करने का सही क्या हम ये सेफ है, ये सही जगह है कार पार्क करने का. डैश विदाउट एड इज इम्पॉसिबल. टू लिव हवा के बिना जीना पॉसिबल नहीं है. डैश इन द सन इन द विंटर इज प्लीजेंट. टू सिट धूप में बैठने का जो मज़ा है वो बहुत ही प्लीज्ड होता है, बहुत ही शांतिमय होता है. डैश द वाटर इज फुलिश. टू वेस्ट द वाटर इज फुलिश. पानी को क्या बोलते हैं, वेस्ट करना, मतलब जहाँ यूज़ ना हो वहाँ हम पानी बिना बात का गिराते हैं या नहीं कुछ भी हो तो वो फुलिश है, बेवकूफ़ी जैसी बात है. आई शैल बी ग्लैड डैश यू टू हेल्प. मैं बहुत ही खुद का वो सराहता हूँ कि आपने जो है वो मेरी मदद की. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने जो है मेरी मदद की. Journals. Observe the following sentence and see how the underlined words functions. देखो कि अंडरलाइन जो वर्ड्स है वो कैसा काम करता है. स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ. स्विमिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है. सीता लव्स डांसिंग. सीता को डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है. स्विमिंग एंड डांसिंग आर यूज्ड एज नाउन्स ऑल्दो दे आर derived from verbs. A verb which was a verb does the work of noun by adding in. It is used the same way as soon as a noun. Hence we say he likes driving. स्विमिंग और डांसिंग जो है वो नाउन्स के जैसा यूज हुआ है और डायरेक्टली वो वर्ब में डिराइव हो रहे हैं. अब जो वर्ड्स है जो ये वर्ब्स के हैं तो वो नाउनली के एडिंग करते हैं, आईएनजी को ऐड करते हैं.
ये जो है ing को ऐड करते हैं. इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज अ नाउन. नाउन के जैसा ही वो ये यूज्ड होता है. जैसे कि ड्राइविंग ing लगता है. राइटिंग पोएम्स इज हिज हॉबी. पोएम लिखना वो उसकी आदत है, हॉबी है. तो एक्सरसाइज फर्स्ट दिया हुआ है. अंडरलाइन द Jenner's grants in the following sentences. Anju likes reading novels by Thomas Hardy. So, reading ing. Boys like playing cricket. Playing. Reading is an interesting hobby. Reading is an interesting. ing. Giving is the better than receiving. जहाँ अभी हमें क्या है कि वो लग रहा है जिसके नाउन है, सॉरी, रीडिंग, गिविंग और रिसीविंग, सिंगिंग गिव्स अस अ जॉय. चलो, तो हमें एक्सरसाइज दी है वो लगानी है इसमें. This bath is necessary for good health. Bathing, B-A-T-I-N-G, bathing. तो B-A-T-I-N-G, bathing. बाथिंग बोलते हैं पर H क्या है, ing लगेगा उसमें. डैश सी इज डैश बिलीव. सीइंग इज बिलीविंग. सीइंग इज बिलीविंग. S-W-A-N, सीइंग, B-E-L-I-V-I-N-G, B-E-L-I-E-V-I-N-G, बिलीविंग. We go to school for studying. S-T-U-D-Y-I-N-G, studying. His dislikes wearing a green shirt. W-E-A-R-I-N-G, studying, और W-E-A-R-I-N-G, wearing. I-N-G लगाना है हमें जो. Baldev was responsible for signaling. S-I-G-N-A-L-I-N-G, signaling. Baldev, he heard the hammering of a woodpecker. H-A-M-M-E-R-I-N-G, hammering. He stops trembling. T-R-E-M-B-L-I-N-G, trembling. The leopard waited at the cutting. C-U-T-T-I-N-G, cutting. The shopping had made her tired. S-H-O-P-P-I-N-G, shopping. The studying grammar is fun. S-T-U-D-Y-I-N-G, studying. S-T-U-D-Y-I-N-G, studying grammar is fun. The present participles. You saw that by adding ing we can use the verb as nouns also. Now look at. हमने देखा कि ing को ऐड करने के बाद जो verbs हैं हम लोग जो नाउन की तरह यूज कर सकते हैं. अब देखो कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका फॉलोइंग सेंटेंस देखो. द ing words functioning like the adjectives or adverbs, they are present participles. अभी जो ing words जो है ना वो adjectives और adverb की तरह यूज्ड होंगे, फंक्शन करेंगे वो भी क्योंकि वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है. He heard a barking deer. The toy was a dancing girl in a glass case. हम लोग एक्सरसाइज देंगे. पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स निकालना है ये सेंटेंसेस में से. द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड. जो बैठा है वो मेरा फ्रेंड है. तो सिटिंग क्या किया, सिटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है. He jumped into the moving bus. Moving in the present participle was. The frightening cry was followed by crashing sounds in the other room. Frightening or crashing. That is upload of playing cards. Playing. Now second exercise. Present participles. We got same dash news last night.
we got exciting news same last night. Exciting news same last night. We had a dance activity in a class today. We had a speaking activity. The black entrance to the tunnel looked menacing. डरावना लग रहा था वो जो टनल था, वो menacing मतलब डरावना. The train entered the dash the tunnel. The train entered the yawning tunnel. She was busy dash letter. She was writing. She was busy writing letters. It was a dash experience for us. It was a learning experience for all of us. The past participle, ये जो था सब present participles थे, अब ये past participles है. तो they found hidden treasures under the stone. उन्होंने क्या किया कि stone के अंदर जो खजाना छुपा था उन्होंने ढूंढ लिया. They ate cooked food. उन्होंने जो कुक किया हुआ फूड था उन्होंने खाया. They cut a fallen tree. जो fallen जो झाड़ गिरा हुआ था उन्होंने उसको काटा. These are burnt sticks. ये जो सारी है वो burnt sticks है वो. The past participles hidden, cooked, fallen used ed, en or high t, hen cooked, fallen to express a complete action as adjectives, quality text and food tree sticks. Pick out the past participles. Follow the sentence, underline them. इसको underline करना है. तो a frightened child ran to his mother. Frightened उसमें ed लगा हुआ है तो वो past participle हुआ. He is a changed man now. ed लगा हुआ है तो ये past participles हुआ. Don't use a broken scale. en ed en जो लगता है वो past participles होता है. Fill in the blanks with the past participle form, the verbs in the box. So submit a dash report. Submit a return. Submit your return report. en मैंने बोला जैसे कि en और ed लगेगा. The police found the dash goods. The police found the steal good. stealed. ed लगेगा. Stolen. Please submit your desk assignment. आप अपना broken assignment, आप अपना जो complete assignment है वो submit करो. Steal का stolen हो जाएगा क्योंकि past है तो ये present है. Steal जो है वो present participles है, हमें उसको past में करना है तो steal का stolen हो जाएगा. Sorry, I was wrong at that. And please submit your completed assignment. ed लगेगा. Don't play with a broken en. It is a dash picture, not a photography. It is a painted picture. वो painted picture है, ये photography नहीं है. Let's write adding और spelling. चलो हम लिखेंगे editing और spelling का. Spelling को compare the sentence given in the boxes below. The curtain curved sharp and the darkness, the black entrance to the tunnel looked up mercilessly. The curtain curved sharply. See you. Compare the sentence given in the boxes below. ये हमें जो sentence है वो compare करना है. तो cutting TTING, sharply, darkness NELS, फिर entrance ENTRANCE to the tunnel TUNNEL tunnel. Look at the menacingly. So cutting sharply, darkness, entrance, tunnel और menacingly. Did you notice that the sentence in the box I had found a spelling mistakes?
but in box second the same sentence has been corrected and all the spellings are corrected. That is the sentence have been edited. अभी आपने जो देखा पहले सेंटेंस में जो सारे वर्ड्स जो थे, सेंटेंस जो था और जो वर्ड्स थे वो सारे कटिंग मतलब के कट के एडिट, जो स्पेलिंग है वो कटिंग किया, पर ये क्या किया उन्होंने एडिट किया हुआ है, तो वो उन्होंने हमको दिखाया. Now edit the following sentence by correcting the spelling. It was, W-A-S, was. It was about the 10 o'clock on holiday and the holiday, H-O-L-I, holiday and the it had been begun. So gaiety had been begun. The grounds of the township. The grounds of the town, T-O-W-N, town, township was filling up with the people, splashing, splashing colors at each other. 14 years old Neenal Pawar, who lives in one of the ground floor flats, was hanging that the watch, W-A-S-H-D, crossed the road in the good time. She planned, P-L-A-N-N, to join the fun as soon as she finished splashing. F-O-U-R-T-W-N 14, उसमें क्या लिखा था 14, F-O-U-R-T-W-N 14. Now you have edited the spelling mistakes. You can also edit the punctuation marks like capital letters, commas, full stops, question marks, use of I like given below. तो हम क्या किया, हमने जो है जो स्पेलिंग्स हैं उनको एडिट किया और हम लोग क्या पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि कैपिटल लेटर्स है, कॉमास है, फुल स्टॉप्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, जैसे कि यूज ऑफ आई लाइक द गिवन बिलो. तो शैल आई कम टू फादर, आस्क द टेम्पो, स्लीपली स्टिल्स लाइंग हंड्रेड इन अ कॉर्नर ऑफ द हट. तो शैल आई कम टू फादर, शैल आई कम टू फादर यानी हम लोग क्या कि इसमें क्वेश्चन शैल आई कम टू, इधर कॉमा और इधर क्वेश्चन मार्क, वो पूछ रहे आस्क देम टू स्लीपी, इधर कॉमा है, स्टिल लाइंग हम्बल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द हट. The sentences in box are given below, edited by putting punctuation marks. They have been underlined in box 2. Now edit the following passage by the correcting functions. हमें जो है ये इसको एडिट करें. एक्सरसाइज 1. Are you going far? Asked the doctor. I am going the way of the Detroit, said the man. Rather than man, still match small black eyes filled with the tears in the wind. तो are you going? तो are you going पहले ये double exclamatory और are you going mark closed. Asked the father. I am going the way to Detroit, comma, said the man, comma, rather than with in the small black eyes filled with the tears of a wind. Chapter 25th, बोली. बोली जो है ये लड़की का नाम है. A little girl Boli fails to develop self-confidence due to her parental attitude. Read the lessons and find out how. जो बोली है वो छोटी सी बच्ची है और वो जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, खुद पे जो आत्मविश्वास होता है, निर्भर जो होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसका जो ये जो डेवलपमेंट था खुद का, वो क्या है अपने पेरेंट के वजह से वो फेल हो गई थी. पेरेंटल एटीट्यूड, उनके जो माता पिता का बिहेवियर था, व्यवहार, उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो फेल हो गया था. Objectives. At the end of the lessons, you will be able to explain the importance of emotional security and family support for children. अंत में आप इमोशनल सिक्योरिटी और जो फैमिली का जो सपोर्ट, साथ और उनका जो मन भाव जो होता है, उसका सेफ्टी जो होता है, उसका हम इम्पोर्टेंस देखेंगे. इंडिकेट द नीड ऑफ लव, एनकरेजमेंट, एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड टू फाइट अगेंस्ट देयर ऑड्स. हम लोग देखेंगे कि कितना प्यार कितना ज़रूरी है, किसी को एनकरेज, किसी को हिम्मत देना, या एजुकेशन के बारे में यानी पढ़ाई के बारे में, ये जो डिसेबल लोग जो होते हैं कैसे फाइट करते हैं, उसका हम लोग को इंडिकेट करना है कि कितना ज़रूरी है ये सब.
डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन द स्पीच एंड राइटिंग। डेमोस्ट्रेट करेंगे हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को। यूज अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। अप्रोप्रिएट फॉर्म्स का वर्ड्स जो अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स है हम लोग कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली यूज करेंगे। नाउ वी विल सी सेक्शन फर्स्ट। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड बोली वॉज अ लिटल स्लो। शी हैड स्मॉलपॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्ड। तो ये जो बोली है वो क्या है, पहले से ही धीरे धीरे उसका जो भी काम हो सब धीरे धीरे काम रहता है उनका। बचपन से उनको क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स हुआ था और उसका जो मार्क्स, स्मॉल पॉक्स जो बोलते हैं उसका जो मार्क्स रह जाता है तो उनके जो क्या फेस पे भी रह गया था। और स्टैमर्ड मतलब हकलाना, तो वो हकलाती भी थी। Why did her teacher take special interest in her? Did बोली measure up to her teacher expectations? जो उनकी टीचर थी उन्होंने बोली के प्रति इतना सारा इंटरेस्ट यानी इतना सारा ज़्यादा प्यार और इतना सारा मेहनत क्यों दिखाया। और जो ये बोली है उन्होंने जो टीचर जो उनको इतना मेहनत करवाती थी और प्यार देती थी तो क्या उनकी आशाओं पर जो बोली है वो खड़ी उतरी, हम लोग आगे देखेंगे। हर नेम वॉज सुलेखा। जो बोली था उसका नाम क्या था, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल वन। पर बचपन से ही क्या सब लोग उसे क्या बुलाते थे, बोली। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार लाल। वो क्या थी, चौथी लड़की थी नंबरदार रामलाल की। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तब वो क्या थी, गिर गई थी सिर के बल। तो उसको क्या है, कुछ ब्रेन में जो है कुछ पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as a bully. इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, backward child, मतलब पिछड़ी हुई लड़की। At the birth, the child was very fair and pretty. Fair और pretty. Fair का मतलब है निष्पक्ष और pretty मतलब सुंदर। तो जब बचपन में जब हम लोग पैदा होते हैं तब हमें ये दुनियादारी वगैरह कुछ समझ में नहीं होता है, तो क्या है तब हम बहुत ही निष्पक्ष होते हैं और सुंदर भी होते हैं। But when she was 2 years old, she had an attack of a smallpox. पर जब वो 2 साल की थी तब उसे क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स का, उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। सिर्फ क्या था, उनकी जो आंखें थी वो सब छोड़कर बाकी सब क्या था, उनका पूरा शरीर जो था उस पर उनको स्मॉल पॉक्स हुआ। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक दैट टिल शी वाज 5। जब वो 5 साल की हो गई तब तक क्या है उनको बोलना ही नहीं आ रहा था। पर जब एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। पर जब उन्होंने 5 साल के बाद बोलना सीखा तब सीखा पर वो क्या हुआ, वो स्टैमर्ड यानी हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, मिमिक्ड हर। जो दूसरे जो बच्चे थे वो क्या है, अक्सर क्या, ऑफ्टन का मतलब अक्सर, तो अक्सर क्या है उसका मजाक, फन यानी मजाक, और मिमिक्ड हर यानी उसकी नकल उतारना। तो वो कुछ भी बोले या कुछ भी एक्शन करे तो जो दूसरे बच्चे थे उसका नकल उतारे। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी। इसी वजह से लेके वो क्या है बहुत ही कम बोला करती थी। रामलाल हैड सेवरल चिल्ड्रन। रामलाल के कितने बच्चे हैं, 7। उसमें से 3 सन, 3 लड़के, 4 डॉटर्स, 4 लड़कियाँ, और उसमें से यंगेस्ट यानी सबसे छोटा कौन था, बोली। इन सब में से सबसे छोटा कौन था, बोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड का मतलब है कि समृद्धि वाला। प्रॉस्परस मतलब समृद्धि, किसान मतलब फार्मर मतलब किसान, और हाउस होल्ड मतलब घर। तो समृद्धि किसान का घर था और प्लेंटी मतलब बहुत कुछ खाने को था उनके पास। ऑल द 3 एस्पेक्ट्स बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये सारे बच्चों में से बोली जो है वो हेल्दी थी और स्ट्रॉन्ग थी।
हेल्दी मतलब तंदुरुस्त और ताकतवर. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो लड़के थे उनको क्या है बाहर पढ़ाई के लिए भेजा शहर में, उनको स्कूल करवाई और फिर कॉलेज भी करवाई. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड. जो उनमें से सबसे बड़ी जो लड़की थी राधा, उनकी बहन, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी, तो उनकी क्या थी, शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगला marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of that third चंपा. तो जो सेकंड मंगला थी उनकी भी शादी तय हो चुकी थी और उनके पापा जो थे वो सोच रहे थे कि ये तय तो हो गई है और एक बार शादी हो जाए फिर मैं जो चंपा है मेरी तीसरी लड़की उसके बारे में भी मैं सोचूंगा. They were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. Bridegroom मतलब लड़के जो जिसके साथ शादी होने वाली होती है उसको ब्राइडग्रूम्स बोलते हैं. बट रामलाल वर वरी अबाउट बोली. रामलाल जो थे वो चिंता में थे. क्यों, किसके लिए, बोली के लिए. बट शी हैड नाइदर गुड लुक नाइदर नो. वो अच्छी दिखती भी नहीं थी और उसके पास इतना दिमाग भी नहीं था. बोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. बोली जब 7 साल की थी तब मंगला का शादी होता है, जो सबसे बड़ी नहीं, जो दूसरी जो उसकी बहन थी तब उसकी शादी हुई थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दैट. उसी साल क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल खुली उनके गांव में. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. जो ये साहेब थे वो ओपनिंग सेरेमनी, जो स्कूल का जो ओपनिंग सेरेमनी था, उद्घाटन बोलते हैं, उसके लिए आए थे. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the governor in the village, and so you must set an example of the villagers. तो ये जो साहेब थे तो उनको क्या बताते हैं, रिवेन्यू ऑफिशियल मतलब जो ये जो आप जो पूरा काम कर रहे हो ये जो विलेज के लिए, गांव के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और आपने एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है सबके लिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम है आपका. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. आपको क्या है, आपकी बच्ची को भी गांव में भेजना है. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to the school, who will marry them?" जब रामलाल है अपनी वाइफ को ये बताते हैं तो वो रोने लगती है उनकी वाइफ और वो बोलती है उनको कि क्या आप क्रेजी यानी आप क्या पागल हो गए हो. इफ़ गर्ल्स गो टू द स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा. बट द रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. तो वो रामलाल जो है उनके पास इतना हिम्मत, करेज मतलब हिम्मत और डिसओबे मतलब आदर न मानना, तो उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि ये जो तहसीलदार ने जो उनको जो बताया है अच्छा काम कि यहाँ आप ऐसा करो, तो उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो उनकी मान का अनादर करें. एटलीस्ट हिज वाइफ सेड, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू." उनकी वाइफ जो है वो बताती है कि हमें क्या करना चाहिए. सेंड बोली टू स्कूल. बोली को स्कूल भेजो. एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. हाँ, थोड़ा सा चांस होगा उसकी शादी के लिए और उसकी जो ये अगली फेस है और लैक ऑफ सेंस जो कमी है उसकी, वो अच्छी दिखती नहीं है और जो उसकी कमी है तो उसको ये अच्छा चांस रहेगा कि वो पढ़े. लेट द टीचर्स एट स्कूल्स वरी अबाउट हर. जाने दो उसे स्कूल में और जो उधर की जो शिक्षक है उनको क्या है उसके बारे में चिंता करने दो. The next day Ramlal caught Boli by the hand and said, "Come with me, I will take you to the school." दूसरे दिन क्या है, रामलाल ने बोली का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुझे आज स्कूल लेके जाता हूँ. बोली was frightened. बोली जो है वो घबरा गई थी. She did not know what a school was like. उसको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold.
उसको ये पता था कि कुछ दिन पहले जो हमारी जो काऊ थी लक्ष्मी, उसको क्या है घर से निकाल दिया था और कैसे उसको बेच दिया था। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स हेड। वो चिल्लाने लगी, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, और उनके जो पापा ने उनका हाथ पकड़ा था वो ऐसा छुड़ा दिया और बोला कि मुझे नहीं जाना है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल। उनके पापा जो है वो गुस्सा हो गए और बोला कि क्या क्या कर रही हो, क्यों ऐसा किया तुमने। आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल में ले जाना हूँ। Then he told his wife, later her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and other school girls think of us when they see her। तो वो रामलाल जो है उनकी वाइफ को बताते हैं कोई कुछ अच्छे कपड़े उसे दो और पहनाओ, और अगर ये ऐसे ही जाएगी अच्छे कपड़े बिना तो दूसरे जो टीचर्स और जो दूसरी बच्चियां हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में जब वो उसको देखेंगे इस हालत में। The new clothes had never been made for होली। कभी भी नए कपड़े होली के लिए बनाए नहीं गए। The old dresses of her sisters were passed on। जो उनकी जो बहनें जो पहना करती थी तो वही कपड़े क्या है होली को दे दिया करते थे। No one cared to mend or wash her clothes। क्या कोई भी क्या है वो जो कपड़ा जो होली पहनती थी अपनी बहनों का तो क्या है कभी किसी ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना कभी वॉश किया। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। श्रंक मतलब छोटा पड़ना, तो इतना दो आज क्या हुआ कि लकीली उसको अच्छा है क्लीन ड्रेस मिली विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। इतने सालों के बाद क्या है उसको अच्छी सी एक ड्रेस मिल गई जो वॉश की हुई थी पर जो क्या है छोटी हो गई थी और वो चंपा को क्या है फिट भी नहीं हो पा रही थी। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज rubbed into her dry and matted hair। वो नहाई और उसके बालों में जो क्या है तेल लगाया और फिर उसको हेयर कोम किया, बाल बनाए। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तो उसको तभी लगा कि हाँ चलो घर से तो अच्छा है, मुझे कहीं भेजा जा रहा है। Section 2। A girl who had not heard the name of school or who did not know what a school was and who felt terrified to go to school develop attachment with the school। How did it happen? Read the second unit of the story। जो गर्ल ने जो बच्ची थी जिसने कभी भी स्कूल का नाम सुना ही नहीं था, ना उसको पता था कि स्कूल में क्या होता है और क्या नहीं, तो वो बहुत ही घबराई हुई थी और इतना सारा उसको कुछ डेवलपमेंट नहीं था स्कूल के प्रति। तो देखेंगे हम कि आगे क्या होता है। हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है। When they reached the school, the children were already in their class। जब वो स्कूल पहुँचे तब बच्चे थे वो ऑलरेडी मतलब पहले से वहाँ शामिल ही थे बच्चे पहले से। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने जो है उधर जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको बोला कि ये मेरी बच्ची। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुकिंग अबाउट हर विद द फेयर लेडन आइज। लड़की को अकेला छोड़ दिया बिना कुछ पीछे मुड़े देखकर और उसकी फियर लेडन आइज मतलब भयभीत आंखें उसकी थी। There were several rooms and each room's girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates। Squatted on mat मतलब घुटनों के बल बैठना, तो वो बैठी हुई थी सारी लड़कियां। The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classroom। जो headmistress थी उन्होंने बोला कि आप क्लासरूम के एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। बोली को पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होती है और स्कूल में क्या क्या हो सकता है और क्या होता है, पर वो इतना ग्लैड मतलब इतना खुश थी वो कि उसकी जो फ्रेंड्स थी वो वहाँ थी जो उसकी एज की थी। She hoped that one of these girl might become her friend।
जो उसकी एज की जो लड़कियां थी वो वहाँ ही थी, और उसको ऐसा लगता था कि शायद कभी कोई एक दिन इनमें से मेरी फ्रेंड बनेगी। The lady teacher was in the class was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. जब टीचर जो है वो लड़कियों को कुछ समझा रही थी, तब बोली ने देखा कि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। She looked at the pictures on the wall. उसने जो वॉल्स पर जो ब्लैक बोर्ड था उस पर जो पिक्चर्स बनाई थी वहाँ उसने देखा। The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the stranger has come to visit her village. The goat was like black, like the goat of the neighbor. The parrot was green, like parrot she had seen in the mangoes orchard. And the cow was just like her Lakshmi, like their Lakshmi. Fascinated मतलब मोहित होना। तो ये क्या है, ये सारे पिक्चर्स देख के वो जो है मोहित हो गई थी। जो हॉर्स था वो कैसा दिखता था, जैसे कि वो जो साहेब लेके आते थे वैसे। फिर जो उनकी गोट थी तो कैसे दिख रही थी, उनके नेबर्स में जो काली गोट है उसकी तरह। पैरोट क्या था, तो उसने जो मैंगो ऑर्चर्ड जो आम का जो बगीचा था उसमें उसने जो ये पैरोट देखा था तोता, उसकी तरह ही दिख रहा है। और जो काऊ ड्राइंग की थी वो उनकी लक्ष्मी की तरह, जो उनकी काऊ थी, गाय थी, उसकी तरह। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड एंड स्माइलिंग। तभी बोली ने देखा कि टीचर जो है वो आई उनके साथ, उसके बाजू में ही खड़ी थी और उसे स्माइल दे रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? टीचर ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैट दैट। वो हकलाती थी तो वो उसने वो ट्राई किया नाम बोलने का, तो वो इतना ही वो हकला सकती थी। Then she began to cry and tears followed from her eyes in helpless flood. फिर वो रोने लगी और उसे लगा कि अभी मुझे क्या है, बहुत खुद को अकेला महसूस कर रही थी तब। She kept her head down and she sat in a corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो उसने बोला वो जब हकलाई तब उसका क्या है, शर्म से हमारे सिर जो है नीचे झुक गया। वो जो जहाँ बैठी थी, और इतना डेयरिंग मतलब इतना हिम्मत नहीं हुआ उसका कि वो ऊपर देख सके, और जो गर्ल्स थी वो अभी भी उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but the bully did not leave her corner. स्कर्ट मतलब क्या है, जल्दी जल्दी दौड़ना। तो जब बेल बजी तो सारी लड़कियां जल्दी जल्दी दौड़ के क्लासरूम से बाहर चली गई, पर बोली जो है वो क्लास में ही रही, उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, और सोबिंग मतलब रोना, तो वो रो भी रही। बोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. I touched her heart. वो बोली और इतना सॉफ्ट और स्मूथिंग से बोली, इतनी अच्छी आवाज़ में बोली, और इतना धीरे से और इतना नर्मदा से बोली, और कभी भी उसने क्या है इतनी अच्छी तरह से किसी को बुलाया नहीं था, तो वो उसको टच कर गया। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. बोली, got up. टीचर बोलती है खड़े हो जाओ, ये कुछ आदेश नहीं दे रही हूँ, कमांड मतलब आदेश, मैं कुछ आदेश नहीं दे रही हूँ, एक फ्रेंड की तरह मैं आपको, एक मित्र की तरह आपको सजेशन दे रही हूँ। सजेशन मतलब कुछ सजेस्ट करना। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, आपका नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, जो वो एक कोने में बैठी थी, रो भी रही थी, तो पूरा पसीना, ये स्वेट ब्रोक आउट मतलब पसीना पसीना हो गया था उसको। Would her stammering tongue almost disgraced her for the sake of the kind woman, however she decided to make an effort? क्या ये जो वो हकला रही थी, उसकी जो टंग है वो क्या उसको डिसग्रेस ऐसी निराशा कर रही थी, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट। पर ये जो टीचर थी तो अच्छा है कि उन्होंने उसको प्रोत्साहन किया और बोला कि हाँ चलो कुछ एफर्ट्स उसमें डालते हैं। शी हैड सच अ स्मूथिंग वॉइस शी कुड नॉट लाफ।
उनकी इतनी अच्छी आवाज़ थी और इतना बोलापन था उसकी आवाज़ में, उनको कभी भी उस पर हंसी नहीं। वो बोली शी बिगेन टू स्टैमर, वो बोलती रही और वो बिगेन टू, उसने वापस से हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। वो बोलती है अच्छा है और बोलो, पूरा नाम बोलो, उनको प्रोत्साहन, हिम्मत देना और प्रोत्साहन करना कि हाँ बढ़ो, आगे बढ़ो, आप करो। तो बोलती है कम ऑन पूरा नाम, आप पूरा नाम बोलो। वो बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। आखिर में क्या है, वो बोलती है पूरा नाम और तब उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। उसको खुद को भी शांति मिली और उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ही बड़ा कुछ काम किया, मैंने बहुत ही कुछ बड़ा पा लिया है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart, you will be able to speak like everyone else. अच्छा काम किया तुमने। वो उनके जो उसका जो शोल्डर होता है उस पर शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि आपका जो डर है वो बाहर निकालो और आपने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और आप क्या है दूसरे बच्चों की तरह आप भी बोल सकती हो, बोल पाओगे। बोली लुक अप एट एज इफ टू आस्क रियली, बोली है जो वो टीचर के सामने देखती है ऊपर और बोलती है कि हाँ क्या सही में। यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू विल यू कम। बोली नोटेड नो, से इट अलाउड। तो वो बोलते हैं हाँ तुम कर पाओगी, बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से। तो तू यू जस्ट कम, तुम हर रोज स्कूल आया करो, क्या तुम स्कूल आओगी। तो बोली नोटेड मतलब सिर हिलाना ऐसे, तो वो नोटेड करती। तो वो बोलती नहीं जोर से बोलो थोड़ा। yes and बोली herself was astonished that she had been able to say it. एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित। तो बोली क्या है, उसने बोला हाँ मैं आऊँगी, पर बोली जो है खुद से आश्चर्यचकित थी कि उसने ये खुद का जो नाम था वो पूरी तरह से बोल पाई। Didn't I tell you now take this book? मैंने बोला था ना, अब तुम ये जो है तुम्हारी बुक ले लो।